Everyone, Assalamu alaikum. Hope everyone is okay and they're having a great time in quarantine, or hope everyone is staying safe and staying away from outside and trying to follow the instructions of the doctors and not anyone else, because doctors को पता है कि क्या करना है. किसी और को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ डॉक्टर्स की बात सुनने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमने बाहर जाना है या नहीं जाना, या हमने किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना है. सो टुडे हमारी जो आज की गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी सुपर कूल फन पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड. She has been an amazing host in the past couple of years, but before that, she started her career as a journalist, and she made her mark in a very short period of time. She's not only known for her great work in Pakistan, but also India as well, and she's a position holder of SAFMA. She is right now seen most famously in Report Card. Her name is Mehmet Sarfraz, and let me just join her in. To the invitation, so if you can please accept it. Hello. Hello, how are you, How are Salman? you, Mehmet? I'm good. I see you have your cool iPods or whatever they're called, earphones. AirPods, yes. I tried to AirPods. connect with my tablet, लेकिन वो हुआ नहीं, कुछ अजीब ही था. Yeah, you're like me in that sense. Technology keeps on changing and leaving us behind. I know. So क्या how are बोले you? फोन बिल्कुल ठीक ठाक सलमान आप बताएं. बस ठीक ठाक. कैसा चल रहा है quarantine? Are you following quarantine or are you sneaking out? नहीं नहीं, आई एम नॉट स्नीकिंग आउट एट ऑल. मैं तो अच्छा. बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ, और एक्चुअली जो है मैं घर पे ही हूँ मोस्टली. आई थिंक 16th मार्च से, बिकॉज हम लोगों ने अपना जो द करंट का ऑफिस था उसको हमने वर्क फ्रॉम होम 16th से ही कर दिया था. So Okay, except very for good. 2 or 3 times that I've gone to get groceries, and Hmm. just a couple of times किसी काम से बाहर निकली थी, but that's about it. Okay, okay. So how is report card been happening? वो क्या इधर ही आकर रिकॉर्ड करते हैं आपको, or like नहीं what happened? नहीं, स्काइप. आई अच्छा, जॉइन ऑन Skype. स्काइप. अच्छा. चलो, that's good. And आपने करंट अभी recently like start किया. You're a co-founder of Current. Like, तो हमें बताएं उसके पीछे क्या, I mean, like reasons. What segment आपने देखा कि भाई, obviously you've been in journalism for so long, you've been doing amazing work. तो current का क्या है niche? Like, how is it different from other publishing houses out there? So the thing is that my friend, who's also a journalist, Mariam Chaudhary, she Hmm. started the current. So she started working on Hmm. 18 के end के ऊपर. She started working on it, and then it was launched on 23rd March Hmm. 2019. I joined at the end of March because मैंने उससे पहले मैं नियो टीवी में थी as a producer. I was Hmm. working there. खबर के पीछे एक प्रोग्राम था जो फवाद चौधरी, मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक करते थे. So I was their producer. फवाद जब अकेला भी करता था. तो जब मैंने वो छोड़ा, because I actually thought I had been there for 3 years, and I thought कि अब जरा बोरिंग इन द सेंस के वो लोग फवाद वगैरह चले गए थे, उनके साथ जरा एक प्रोग्राम करने का एक अपना मजा भी आता था, बिकॉज वो डिफरेंट होता था. बट देन आई थॉट कि अच्छा, आई डन दिस एंड बिन देयर डन दैट, सो शुड डू Hmm. समथिंग न्यू. एंड देन मरियम आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू जॉइन एज अ को-फाउंडर एट द करंट, बिकॉज डिजिटल हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट. एंड आई थॉट इट वाज एन Hmm. एक्साइटिंग प्रोजेक्ट. अब बड़ी नौकरियां कर ली, चलो कुछ अपना भी करते हैं. तो आई थिंक एक चीज वो भी थी. फिर वी वांटेड टू मेक समथिंग फन, मेक समथिंग नाइस. खासतौर पे जो हमारी यंगर जनरेशन है, मिलेनियल्स जो हमारे हैं, उनके लिए हम कुछ Hmm. नया कंटेंट, एंड टू सिंप्लीफाई न्यूज फॉर देम, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो. सो वी वांटेड टू सिंप्लीफाई दैट फॉर देम. सो आई थिंक इट वाज जस्ट दैट. Hmm. अच्छा, सही है. So how's एंड it माशाल्लाह going? इट्स Like, डूइंग सो वेल. that's good. That's good. हाँ, मैं देखता रहता हूँ. Like, it's very refreshing और different content है. Especially like Instagram पे और Twitter पे, like the stories are very different, और वो usual नहीं होता, like, back and forth. Like, it's a very fresh kind of a look. So congratulations on that. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सलमान. एक्चुअली वाकई बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है. ये जरूर है कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम, बट वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव टीम. बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं. तो वो सब हम Hmm. मिलके, एंड बिकॉज वी जेल टुगेदर सो वेल, और वो सब भी, तो फिर उसकी वजह से बड़ा अच्छा चल रहा है. एंड इट्स जस्ट बिन अ ईयर, बट माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, के वो Hmm. हमें उसकी पजीराई बहुत ज्यादा मिली.
दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो क्वारंटीन में क्या चल रहा है? हर कोई, मुझे चिड़िया, मेरे पास भी एक चिड़िया है, उस चिड़िया ने मुझे कहा कि आपने शायद खाना पकाना शुरू कर दिया। और वो चिड़िया आपकी है। बस सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं सच्ची बात करती हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि मुझे खाना वगैरह बनाने का, कोई कुकिंग का कभी जिंदगी में ऐसा शौक नहीं रहा। एक मुझे हम्म, चाय का क्योंकि बहुत ज्यादा शौक है, तो चाय मैं अपनी खुद बना लेती हूँ। तो दूसरा ये है कि क्योंकि मुझे अंडे भी बड़े पसंद है, तो मैं ऑमलेट बना लेती थी। लेकिन हम्म, आइसोलेशन में ये हुआ कि बोर हो गए, क्योंकि जरिए पता है मेड को भी और कुक को सबको पेड लीव दी हुई थी। तो मैं और मेरा हस्बैंड जो है, हम लोग बोर हो गए कि यार अब रोज बस सिर्फ शामी कबाब ही फ्राई करके खाने हैं, या K&N के चप्पल कबाब ही फ्राई करके खाने हैं, या अंडे ही खाने हैं। तो शायद हाँ, कुछ नया खाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी भी नहीं उस तरह से करा रहे थे खानों की। सो देन आई हम्म, आस्क्ड माय खाला कि अच्छा वैसा मुझे घर के दही भल्ले बहुत पसंद है, खासतौर पर उनकी रेसिपी। मैंने उनसे पूछा कैसे बनाते हैं, उन्होंने हम्म, बताया। फिर मैंने अपने एक और दोस्त से कड़ी पकौड़ा मुझे बड़ा पसंद है, उसकी रेसिपी पूछी, हम्म, वो बड़े अच्छे बन गए। हम्म, फिर मैंने कीमे पे हाथ साफ किया, फिर मैंने कोफ्ते बनाए आलू चना So now बनाया, you're बड़ी becoming a चीजें इस तरह pro. के। प्रो तो नहीं, तो लेकिन आपको 5-6 डिशेस जो है ना, अभी कल रात ही मैंने एक तवा चिकन भी ट्राई किया अपनी रेसिपी बना के। तो ठीक है, मतलब गुजारा है, खा सकते हैं, नॉट बैड। एंड बिलाल रियली लाइक्स देम, तो ठीक है, मैंने और उसने ही खाना होता है, इट्स फाइन। he likes it or he has no choice but to like it? That's the नहीं नहीं, question. ही जेन्युइनली लाइक्स इट, बिकॉज बिलाल जो है ना, वो बड़ा ब्लंट है, वो बड़ा मुंह फट है, उसको नहीं कोई चीज पसंद है क्योंकि "हाँ, इसमें ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्या है"। तो वो उसने जेन्युइन तारीफ की, वाह वाह बहुत अच्छा खाना That's good. That's good. Ashish, you've been involved in SAFMA as well, India, Pakistan, like, been covering, you would travel there as well. तो क्या, I mean, like, what's your take on it? Like, a little serious question. What's your take on it? Like, आप कैसे देखती हो कि, I mean, like, अब आगे इस दौरे हुकूमत में जो इंडिया में इस वक्त है, like, do you see any development, any betterment in ties, at least between journalists? एक्चुअली नॉट दैट मच सलमान, इन द सेंस कि देखें, मैं बताऊं कि जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी, तब तो हम्म, किया, लेकिन हम्म, फिर क्या शुरू हम्म, हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम्म, 2016 का किससे visas to Pakistanis हम्म, unless you're a businessman or आप या आप मेडिकल रीजंस के हों। बहुत कम लोगों को वो वीजा, हम्म, जिनको मिलते भी थे, जो साल साल के भी मिले हुए थे मल्टीपल वीजास, वो भी बीच में आपने देखा कि बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिए। और जर्नलिस्ट को तो वो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान तो फिर भी देता रहा है, अभी भी दे रहा है वीजा, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा हम्म, होता है क्विट प्रो को तो कम किया होगा, बट नॉट लाइक द मोदी गवर्नमेंट के बिल्कुल ही बंद कर दें। सो आई एक्चुअली आई फील वेरी सैड अबाउट दिस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो इतना इंडिया जाती थी सलमान, मतलब मैं तो हम्म, साल के अंदर 2-3 बार तो, एक बार तो लाजमी जाना होता था, लेकिन एटलीस्ट 2-3 बार भी हो जाता था ट्रिप। साथ ही तो वाकई है पीछे, वहां से हाँ, गए, ऐसे अटारी क्रॉस किया, अमृतसर ऐसे चले गए, आगे से दिल्ली चले गए। ऐसे तो ऐसे ये इसलिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बट आई थिंक विद द काइंड ऑफ हॉकिश गवर्नमेंट दैट इज इन इंडिया राइट नाउ, आई डोंट सी एनी चांसेस। पाकिस्तान तो देखिए अभी भी चाहता है, इमरान खान साहब ने पुलवामा के बाद भी इतनी बात की, मोदी के इलेक्शंस के बाद भी इतनी बात की, हम लोगों की मिलिट्री को ये लोग बात करते हैं, बट मिलिट्री ने भी कहा, इतने पीस जेस्चर्स भी हम लोगों ने किए, बट आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई डोंट सी एनी फ्यूचर इन दैट। सही है। आपकी दोस्त अफशाम असद ने भी ज्वाइन किया, वो हेलो कह रही है आपको। हेलो अफसा, हेलो, बड़ी मेरी फेवरेट है ये। हाँ हाँ, शी इज अमेजिंग, शी डज अमेजिंग व्लॉग्स, हम करते रहते हैं उसके ऊपर बात। सो अभी आजकल रूटीन खाने के अलावा क्या अभी लाइक चल रही है? लाइक व्हाट एल्स डू यू डू एक्सेप्ट द करंट एंड रिपोर्ट कार्ड? और रिपोर्ट कार्ड की मैंने आपसे पूछनी है, आपका फेवरेट जो, और मेरा और आपका फेवरेट उसमें होस्ट है इरशाद भट्टी साहब, उनकी हमें बताएं, उनकी क्या पीछे से अमेजिंग किस्म की जो एक उनकी कमेंट्री चल रही होती है। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अच्छा मैं बताऊं, सलमान, बहुत लोग मुझसे भट्टी साहब के बारे में पूछते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब वो अपना कमेंट कर रहे होते हैं, तो मैं कभी यूं आंखें कर रही होती, कभी यूं, कि जाहिर बात है मैं उनसे एग्री नहीं कर रही होती, या कोई इस तरह की, मतलब उन्होंने खुद भी बल्कि मुझे कई दफा कहा, उन्होंने कहा कि लोग मुझे बड़ा बताते हैं कि वो महमल जो है ना, वो बड़ी कभी आंखें बना रही है, कभी सर इधर कर रही है, कभी यूं कर रही है तुम्हारी बात के ऊपर। तो वो एक ठीक है, हमारा एक आइडियोलॉजिकल या व्यू पॉइंट का हमारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। वो बड़े अच्छे इंसान है। ऑफ कैमरा जब आप उनसे बात करें, वो बड़ी शुगली भी हैं, आपको वो जोक्स भी करते हैं। खैर वो तो ऑन कैमरा भी जोक्स चलते रहते हैं, बट ऑफ कैमरा भी वो जोक्स ही आपके चल साथ रहे होते हैं। मजाक भी करेंगे, वो आपके बड़ा तरीके से आपके हालचाल भी पूछेंगे। मेरे तो वैसे ही वो पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको आपका नाम भी तो माल्टे रखा हुआ उन्होंने, माल्टो, माल्टो की रानी की क्या? माल्टो वाली, मेमन माल्टो वाली, वो उसके पीछे स्टोरी उसकी ये क्या है स्टोरी? कि मेरे जो हस्बैंड है, उनके माल्टो के बागात है भलवाल में। तो अच्छा अच्छा। तो वो जो है ना, मैं सबको माल्टो की पेटियां दोस्तों वोस्तों को भेजती हूँ। तो भट्टी साहब को हाँ, मैं भेजना भूल गई। तो उन्होंने कहा कि तुमने सबको भेजे हैं, तो तेरे माल्टो में कीड़े पड़े क्या, तूने मुझे नहीं तुमने भेजे। उन्होंने आपका नाम रख दिया मैमल माल्टो वाली। वो पता है, ये कहते हैं माल्टो वाली, तूने माल्टे नहीं दिए तो देखी क्या होगा। आपकी आवाज है थोड़ी सी, जिसने कोई वाईफाई के पास अगर आप चले जाओ तो मेरे ख्याल में अच्छा, कीप्स ऑन सॉरी, डिस्कनेक्टिंग। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, आई विल एक्चुअली जस्ट नो मूव अ बिट। आई थिंक नो थोड़ा वरीज। सा करीब। आप बताएं। आपने भी पीटीसीएल लिया हुआ है? आपने भी, मुझे लग रहा है ये पीटीसीएल की बरकतें हैं। पीटीसीएल है, पीटीसीएल है। पीटीसीएल की बरकतें ही हैं ये सारी। अच्छा, तो इंडिया आपका लास्ट ट्रिप कब गया? एंड टेल अस, हमें कोई फन वाकया बताएं। आपकी और हमारी वो कलेक्टिव फ्रेंड भी है रुचिका, जो ऑस्ट्रेलिया में, और उससे भी चलती रहती है। उसको मैंने कहा था कि ज्वाइन करें, पता नहीं वो आई है कि नहीं आई। लेकिन अभी हमारी फ्रेंड है समिया लतीफ, उसने ज्वाइन किया फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। शी इज फ्रॉम कश्मीर, शी इज वर्किंग इन दिल्ली, so she's just joined us now. हेलो। So tell us some fun memories of Delhi and your trips to India. Well, the last time that I went to India was actually in 2016. वो जुलाई था, रुचि की ही शादी थी। उसी की अच्छा शादी अच्छा। पे ही मैं आखिरी बार गई हूँ। मेरी अपनी हम्म शादी अप्रैल 2016 में हुई थी, जिसके ऊपर रुचि और उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी। तो फिर हम्म उसकी शादी के ऊपर मैं, मेरा हस्बैंड, बल्कि हम लोग तो इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो हमारा पहला ट्रिप था शादी के बाद, और उसमें मेरे अब्बू और हम्म। चचा भी साथ गए। तो वो सारे, मेरी ओके। फैमिली कहती है तुम हनीमून पे अब्बू और चचा भी साथ ले गई हो। तो मैंने कहा भाई वो हनीमून नहीं था, वो तो सिर्फ रुचिका की शादी थी अमृतसर के अंदर। बट इट वॉज अ फन ट्रिप, बिकॉज मेरे अब्बू और चचा और बिलाल तीनों का पहला ट्रिप था इंडिया में। तो वो अच्छा था। फिर वैसे जो है ना, मजे की मैं बात बताऊं सलमान, क्योंकि मैं इतना जाती थी और खासतौर पे मैं बाय एयर बहुत कम गई हूँ, मैं मोस्टली यही वादा क्रॉस करके ही जाती थी। तो अटारी वाले बहुत सारे दोस्त बन गए उधर, जो कस्टम्स वाले थे और जो ये कुली होते हैं और ये सब जो उधर लोग होते हैं। तो वो ना उस जमाने में आपको पता है कि वो एक जिंदगी चैनल जो था इंडिया में, उसे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत चलते थे। हाँ तो सही। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो जो जिंदगी चैनल में कपड़े पहनते हैं ना, वो जो थ्री पीस जो यानी लॉन सूट जो थे ना, उनका बड़े थे, नेक्स्ट टाइम हमें ना वो चाहिए। तो मैं ना बैग्स की बैग्स भर के, तो मैं वो लॉन के जोड़े ले जाती होती थी अपने साथ। और मैं ना वो जाकर कभी किसी कस्टम्स वाले को दे दिया, किसी कुली को दे दिया, किसी जिस जिससे मंगवाया ना, दोस्तों के अलावा, मतलब जो ये रैंडम लोग हाँ जिनको मैं जानती तो नहीं थी। तो एक बार हाँ। फवाद चौधरी साहब और मैं गए, हम लोग उधर एक इंटरव्यू शूट करने के लिए गए थे उमर अब्दुल्ला साहब का। तो फवाद ने बल्कि वापस आकर उस पे लिखा भी द फ्राइडे टाइम्स के लिए एक कॉलम, और उसने कहा कि अगर इंडिया जाना है तो मैमल के साथ जाओ, क्योंकि ये हर कुली और हर बंदे को उधर जानती है, और कोई कैब वाला नहीं है जो इसको नहीं जानता, क्योंकि ये उनको जो है ना, ये अच्छे भले जोड़े शोड़े उनको देती रहती है लॉन के। तो तो अब मैंने तो वो आपको मिस पाकिस्तान की कर बड़ी रहे होंगे। मार्केटिंग की हुई है। बिल्कुल मिस हाँ अब करते तो होंगे, आप। मैं खुद बड़ा मिस करती हूँ। आप दिल्ली अमृतसर आपने खाया क्या? कुलचे शुलचे खाए? अमृतसर में तुमने हर चीज खाई, पता खाना तो मैं इतने शौक से। अच्छा, और होता क्या है कि इंडिया जाके, हालांकि ये है कि ऐसी बात नहीं है, हलाल तो उधर से मीट मिल ही जाता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि वेजिटेरियन वैरायटी इतनी ज्यादा है, तो मुझे उनके वेजिटेरियन खाने बहुत पसंद है, और खासतौर पर मुझे उनके साउथ इंडियन खाने बहुत पसंद है। मतलब डोसा हो गया, फिर बाकी ये इडली सांभर हो गया। तो मैं तो वो इतना उधर जाकर खाती थी, साउथ इंडियन खाना तो खा खा के मैं पागल हो जाती थी, और वेजिटेरियन। हाँ अमृतसर में तो खैर खास उपम तौर पर और अमृतसर की एक डोसा। स्पेशलिटी विच आई मिस, वो तो बहुत पसंद है। अमृतसर में मैं बताऊं आपको एक क्या सीक्रेट सलमान, वो है वहां पर क्या? एक बंसल की मिठाई की दुकान है। उनके जो ओके। लड्डू है ना मोतीचूर, वो अच्छा। वो जो मोतीचूर लड्डू है बंसल के, आई हैव नेवर हैड सच हम्म। गुड लड्डूज इन माय लाइफ। वो मैं लिटरली अच्छा। बैठ कर एक हम्म। पूरा डब्बा आधा किलो का एक टाइम पे ही खा सकती थी।
मतलब मुझे वो इतने मजे के थे, और मैं अब प्री डायबिटिक हूँ, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह ये ओह भी होगी कि वाह। बंसल के लड्डू ठूस ठूस के तो हाँ, मिठाइयाँ तो वहां पे बेशुमार है, दिल्ली में भी हर जगह मिठाइयाँ, और हल्दीराम, और वो क्या नाम है, वो कौन सी मार्केट है, बंगाली मार्केट, बल्कि ये और मेरी उनके दोस्त जो चाट। अभी ऑनलाइन ही है, चाट उधर की, ये उसके साथ ही मैं समिया के साथ ही हम गए थे उधर, हमने वो नथुस, गोलगप्पे, और हाँ, पानी पूरी, ये सारी चीजें हमने वहां पे एंजॉय की थी। तो पाकिस्तान में आप बताएं, पाकिस्तान में आपका लाइक लाहौर में, डू यू बिलीव लाहौर हैज बेटर फूड और कराची? ऑनेस्ट आंसर। अच्छा, मुझे लाहौर का खाना ज्यादा पसंद है। मुझे पता है कि बहुत सारे अच्छा। लोग कहते हैं कि नहीं, असल खाना तो कराची में होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लाहौर की निहारी, मुझे लाहौर की ही बिरयानी, हालांकि बिरयानी इज अ वेरी सिंधी डिश, और ये कि हम्म। लोग कराची के बड़े अच्छे भी बनाते हैं, लेकिन मुझे खुद हम्म। पर्सनली मुझे लाहौर जैसा शहर नहीं कोई और लगता, और मुझे लाहौर के खाने भी बहुत पसंद है। हम्म। अच्छा, कराची, आई डोंट नो, मेरा अपना पर्सनल जो रहा है, हालांकि मैं भी लाहौर में ही रहा हूँ सारी उम्र, लेकिन कराची हैज आई थिंक मोर वैरायटी एंड मोर लाइक यू नो समहाउ उनका जो रेस्टोरेंट्स है ना, मोर डेवलप्ड देन लाहौर। तो हमारे यहाँ पे मीट पे ज्यादा जोर है लाहौर में, कराची में फिर भी दे डू डिफरेंट का, वैरायटी ज्यादा करते हैं नहीं, ऐसे मीट पे। अच्छा साउथ इंडियन खाना मुझे उधर कराची का उधर बड़ा अच्छा मिलता है साउथ इंडियन खाना, और उसके अलावा ये कि उनके चाट कराची के भी बहुत अच्छे हैं। तो ये वाली चीजें, हाँ। लेकिन सर निहारी और ये वाली चीजें, ये मुझे लाहौर की टू बी ऑनेस्ट ज्यादा पसंद है, बट ये भी हो सकता है कि मैंने कराची में कोई बहुत ज्यादा बाहर जाके उसका ट्राई भी ना किया हो। मतलब मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जरूर जाती रही हूँ, बट हम्म। हो सकता है कि स्ट्रीट फूड इतना ना खाया हो कि शायद मैं कर सकूं प्रॉपर सही कंपैरिजन। सही है। सो अब हमें बताएं कि आपने फ्राइडे टाइम्स में काम किया, फिर वैनगार्ड में काम किया नजम सेठी साहब के साथ। सो आई मीन लाइक कौन सा ऐसा पीरियड था ऑफ योर लाइफ इन जर्नलिज्म इन विच यू लर्नड द मोस्ट, एंड व्हाट इज द वन लेसन जो आप देना चाहेंगी फॉर पीपल हियर जो कि यू नो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, ये स्पेशली गर्ल्स हु ट्राई टू लाइक break the stereotype? और आपके लिए एक मैसेज आया जी, हेलो मेहमद, सो नाइस टू हियर यू लाइव, योर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कश्मीर, वरद शर्मा। ओह, दैट्स माय फ्रेंड वरद। हाँ, हेलो वरद, हाउ आर उसने यू? आई मैसेज, आई मेट वरद इन हैदराबाद, ये उसका गुदा था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, उसने तो मैं मैसेज भेजा बताती हूँ आपके। सलमान, देखिए, जो जर्नल जी, जो हम्म। जर्नलिज्म की बात है ना, आई स्टार्टेड इन 2005 एंड आई लर्न अ लॉट, हम्म। बिकॉज वो एक नया अंग्रेजी अखबार उस वक्त लॉन्च होने वाला था, द पोस्ट, जो खबरें वालों का था। अब तो खैर वो बंद हो गया अखबार। उधर राशिद हम्म। रहमान साहब थे, वो उधर एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। एडिटर उसके अदनान शाहिद साहब थे, जिनकी अब डेथ हो गई है, ज़िया शाहिद साहब के बड़े बेटे। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ही डाइड व्हाइल वी वर देयर। इट वाज वेरी ट्रेजिक बिकॉज ही He वाज was in सो London, यंग। right? He was in He London. He was had in taken Zia London, साहब yeah, for his heart surgery, हाँ, उनके हार्ट के इलाज के लिए गए। और एक्चुअली जब न्यूज आई तो correct. वी a lot of us assumed के गलती हुई है, अदनान साहब की बात नहीं कर रहे, because he was so young, वो, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ and he suddenly died. So it was very unfortunate and we still miss him a lot because he was like an angel totally. So the post में जो फायदा मुझे हुआ, मेरे ख्याल में एक ये बड़ा फायदा होता है कि वो एक नई जगह थी, वो लोग नए लोगों को ट्राई कर रहे थे, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मैं तो उधर इंटर्नशिप के लिए गई थी, मतलब मैंने उधर महीने की इंटर्नशिप करनी थी। तो उस इंटर्नशिप के दौरान हफ्ते या 10 दिन के बाद ही मुझे अदनान साहब ने कहा, और उन्होंने राशिद साहब ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि यू राइट रियली वेल, बिकॉज मैं अंग्रेजी में फीचर उनके लिए लिखती थी, रिपोर्टिंग के। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो तुम जो एडिटोरियल पेजेस पे आ जाओ, बिकॉज वी थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू एडिट स्टाफ एंड राइट एडिटोरियल्स। तो मैंने राशिद रहमान साहब से, जो कि वैसे लोग शायद जो उनको नहीं जानते, तैमूर रहमान जो उनके वालिद साहब है, अच्छा अच्छा, प्रोफेसर तो तैमूर के, अच्छा अच्छा। जी 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 बिल्कुल, जो लम्स वाले हैं। तो राशिद रहमान हाँ। इज हिज फादर, और वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो राशिद साहब ने हम्म। मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने मुझे एडिटोरियल राइटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे ऑपरेट पीसेस की होती है, क्या टॉपिक्स होने हम्म। चाहिए, किस तरीके से हम्म। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी उन्होंने बड़ा चेंज किया, बड़ा उन्होंने, मैं इवॉल्व हुई हूँ, बड़ा लेफ्ट से हम्म। कुर्बत भी उनकी वजह से हुई। तो सबसे ज्यादा तो मतलब जिनको मैं क्रेडिट दूंगी वो राशिद रहमान साहब है। उसके बाद फिर और भी हम्म। बहुत सारे लोग, आपने जिस तरह नजम सेठी की भी बात की, वो भी हैं, इम्तियाज आलम साहब भी हैं, उन्होंने भी बड़ा सिखाया है। खैर और भी बहुत दोस्तों से हमने सीखा है, साथ साथ खालिद अहमद साहब हैं,
आई थिंक उनसे फिर ये कि अब मैं द हिंदू की पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, तो द हिंदू मैं बहुत अरसे से पढ़ रही हूँ और रेगुलरली ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि ये क्या अमेजिंग पेपर है, बिकॉज वो इतना बैलेंस्ड होता था और इतना वो बैलेंस्ड है, बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रॉब्ली हाँ वन ऑफ द बिल्कुल ना वेरी फ्यू इन जिगोइस्टिक है। इंडिया व्हिच आर बैलेंस्ड। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सो मेरे लिए तो एक वो ड्रीम था कि, और उन्होंने जब मुझे कहा कि वुड यू लाइक टू जॉइन एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, तो मेरे लिए तो वो बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सो आप पूछ रहे थे वैसे पहले कैलकुलेशन मुबश्शिर में क्या जैदी करती साहब हूँ भी उनके तो साथ थे, राइट? जी जी बिल्कुल, मुबशर के बाद जी मैं, बिकॉज देखिए पहले होता ये था कि हिंदू के अपने कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद आके रहते थे और उनके जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए तो दोनों के जर्नलिस्ट जो हैं वो ये वाली जर्नलिस्ट एक्सचेंज वाली चीज खत्म हो गई। सो दैट्स व्हाई, सही। अदरवाइज दे ऑलवेज हैड इंडियंस कवरिंग पाकिस्तान फॉर देम इन पाकिस्तान। हम्म। बट जो आप बात कर रहे थे कि क्या करती हूँ, सुबह उठते हैं, करंट का काम स्टार्ट होता है, हिंदू की स्टोरी भी जारी बात है वो हफ्ते में एक या दो, अनलेस के कोई ब्रेकिंग आ जाए वो भी साथ साथ फाइल करनी होती है, सो उस पर भी करती हूँ। देन आई ऑल्सो राइट कॉलम्स थोड़े बहुत इधर उधर, तो वो भी काम करते हैं, तो काम चलता रहता है। फिर घर की सफाइयाँ, एक जो आइसोलेशन में सबसे सबसे ज्यादा जो मैं मिस कर रही हूँ ना सलमान, मैं आपको उसका नाम बताना चाहती हूँ, वो है रॉबिन। अच्छा। रॉबिन इज माई क्लीनिंग गाय, ठीक है, वो आता है हफ्ते में एक दिन, लेकिन अब वो घर चमका जाता है। अब सही है। जब से ये आइसोलेशन स्टार्ट हुई है ना, रॉबिन नहीं है, और किचन धोना पड़ता है और बाथरूम धोना पड़ता है और मतलब कि झाड़ू पोछे लगाने पड़ते हैं, और मैं और मेरा हस्बैंड वी शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट्स नॉट जस्ट मी, बट मैं करती हूँ कि एक हफ्ता तुम्हारी सफाई एक हफ्ता मेरी सफाई, तो वो हम करते हैं। सही। लेकिन फिर भी मैं बड़ा हाँ। मिस करती हूँ रॉबिन को। रॉबिन आई मिस यू, कब खत्म होगा कोरोना? किसी ने लगाया हुआ था एक बना के, वो करण जौहर की फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, उसका उसने बना के लगाया हुआ था कि जिस तरह जिया बहादुरी शाहरुख खान का वेट कर रही होती है, उस तरह आप सारे सफाई वालों का वेट कर। और वो वीडियो मैंने देखी और मैंने कहा हाय, बिल्कुल मैं रॉबिन के साथ एग्जैक्टली, एवरीवन इज कब वेटिंग फॉर कोरोना देयर खत्म हो, कब सफाई सफाइयाँ वाले स्टार्ट टू हो। कम बैक। आपके लिए जनाब कमेंट आ रहे हैं, इस क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हाउ इज योर हबी। एक मुंतहा यूसुफ वो कह रही है जी मेरी टीचर बन जाए राइटिंग कॉलम्स में, और नौशीन हसन कह रही हैं मैमल यू राइट वेरी वेल बट आई वांट टू नो हाउ वेल डू यू कुक। ये मेरी खाला है, जिन्होंने एक्चुअली, नौशीन हसन इज माय खाला, ठीक है, ये अच्छा इन्हीं अच्छा। की रेसिपी पे मैंने वो दही भल्ले बनाए थे और मैंने कीमा और कोफ्ते, और नौशीन खाला आपकी मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छा खाना बना, आपको वो कोरोना मेरे के ख्याल बाद में यही खिला के सुनना चाह रही भेजा। है कि आप उनकी तारीफ कर दें जरा। और सलमान बिलाल बिल्कुल ठीक है, सलमान जो है ये बिलाल के कजन के हस्बैंड है, तो अच्छा अच्छा। मेरा मेरा आधा खानदान मेरे ख्याल में इधर ही है, मेरी भाभी और मेरी कजन वगैरह भी कहीं है इधर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो अभी हमें बताएं ट्रोलिंग, सीरियस क्वेश्चन। ट्रोलिंग आई मीन लाइक बहुत होती है, लाइक ऑब्वियसली जब आप, बिकॉज यू आर वन ऑफ द फ्यू एंकर्स जो सही जिस तरह बगैर लगे लिपटे बात कर देती हैं, एक आप और एक बेनजीर है, आई मीन लाइक रिपोर्ट कार्ड पे very balanced and like very good reporting, especially from the younger lot. There are very few people to follow, and you two are one of रीमा them. भी है, बाबर भी है, रीमा भी है, सब रीमा यंगर। इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आती, वो ज्यादा लीगल चीजों को कवर करती है। मैं फीमेल एंकर्स में बात कर रहा था कि आप और बेनजी तो रेगुलर हैं, सो यू गाइस आर लाइक एज इट इज बोलते हैं, तो आपकी ट्रोलिंग भी बहुत होती है। मैंने अभी देखा कि पीछे बेनजीर की भी किसी मिनिस्टर ने ट्रोलिंग कर रहे थे और आपके भी फिर काफी अटैक्स आ रहे थे। सो आपको इट, आई एम श्योर इट अफेक्ट्स यू मेंटली एज वेल, कि कि इट टेक्स अ टोल इवन इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड। तो आपका क्या मैकेनिज्म है, आप कैसे उसको ब्लॉक करती हैं, कैसे आप उसको डील करती हैं इस नेगेटिविटी को? सलमान देखिए, ये तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, ये इट कम्स, जो पेरेंट्स ऑफ जर्नलिज्म आप कह ले, मतलब कि आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो है वो बड़ा इजी टारगेट होते हैं, ठीक है, हमारी अपनी भी कई चीजें उन्हें नहीं भी पसंद आती, कुछ वो पुरानी चीजें निकाल लेते हैं जो पुराने व्यूज, या जिस तरह अभी रिसेंटली तो इस तरह का ही अटैक हुआ था। बट जिस तरह आप ये देखें, मैं तो देखती हूँ आसमा शिराजी को, मैं देखती हूँ गरीदा फारूकी को, मैं और इस तरह की जर्नलिस्ट, मैं सलीम साफी, मंसूर अली खान, इन लोगों को देखती हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं। तो मैं इनको कई बार, मैं आसमा से तो अक्सर ये बात बल्कि करती भी होती हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, उसको तो 2 साल से ऊपर हो गया है कि उसको जिस तरह का, वो जब से उसने मियाँ साहब का इंटरव्यू किया था, जो या जो इत्तेहाद एयरवेज में। जी जी जो चला भी नहीं था एक्चुअली उनके जी चैनल जी पे, जी। लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की ट्रोलिंग उनकी शुरू हुई, तो बड़ा मुश्किल होता है सलमान, मैं बताऊं। अच्छा,
जर्नलिस्ट की वैसे भी इस चीज से डील करने के लिए भी जरा मुश्किल तो होता है, बिकॉज यू नो इट डज टेक अ टोल ऑन यू मेंटली। समटाइम्स यू जस्ट डोंट लाइक, आई डोंट चेक माय मेंशंस एनीमोर। ये कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं वो अपने मेंशन, बिकॉज दैट्स वेरी नेगेटिव। आपकी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही होती है, अब आप ये टॉक्सिक चीजों को आप किस तरह से वो करें, डील कर रहे हो। तो मैं तो खैर इग्नोर करती हूँ, मेरा तो अपना ये है। और मुझे है कि रिस्पॉन्ड करने का फायदा नहीं होगा अगर अगले ने बदतमीजी करनी है। फिर एक जो चीज जो मुझे जिसका बड़ा अफसोस होता है वो ये है कि जो ये औरतों को सेक्सुअलाइज बातें करते हैं या सेक्सुअलाइज गालियां देते हैं, वो रहता है। देखिए गालियां हम लोग भी देते हैं, कोई ऐसी नहीं होता, हमने भी जुबानें इस्तेमाल की है जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन जो एक जान कर हर वक्त ही उस तरह की बातें कि यू नो यूर समबडीज मिस्ट्रेस और यूर अ स्लट और इस तरह की जो बातें होती हैं, मेरे ख्याल में वो कई दफा आपको लगता है कि यार ये इतनी सेक्सुअलाइज अब्यूज क्यों है औरतों के लिए खास तौर पे। तो उसका अफसोस ही कर सकते हैं, और तो इसको सलमान कुछ नहीं कर सकते। मतलब हालांकि मुझे बहुत लोग कहते हैं रिपोर्ट कर दो या इस तरह का, मैंने तो अभी तक खैर कोई इस तरह का लीगल नहीं कोर्स किया कि मैं उस तरफ जाऊँ, कोई लीगल इसके ऊपर करूँ। आई जस्ट इग्नोर इट टू बी ऑनेस्ट, यू नो। आई नॉट, खैर मैं ट्वीट तो टू बी ऑनेस्ट मैं इतना करती भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं इतना रेगुलर नहीं करती, बट आई यूजुअली गो टू ट्विटर फॉर इट फॉर न्यूज, जस्ट टू सी क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। कुछ रीट्वीट कर दिया, कभी कभार मैं कोई अपना ट्वीट कर भी देती हूँ, बट आई एम नॉट दैट रेगुलर ऑन ट्विटर वैसे ही। तो इसलिए मुझे इतना मतलब फर्क पड़ता है, अफसोस होता है, जाहिर बात है, बट दैट्स अबाउट इट। बट व्हाट कैन वन डू, यू कांट स्टॉप इट, देयर इज टू मच नेगेटिविटी, बट इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, वी हैव टू बी ऑन ट्विटर। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आई मीन लाइक डोंट यू थिंक कि अगर ये इस तरह की ट्रोलिंग और नेगेटिविटी को एक खास माइंडसेट की तरफ से प्रमोट किया जाता है तो यू नो देन इट्स मोर सीरियस, राइट? कि अगर क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 4-5 साल से ही इस नेगेटिविटी को खास तौर पे प्रमोट किया जाता है और उसको बाकायदा कवर किया जाता है, बल्कि कई बड़े इंपॉर्टेंट हैंडल्स होते हैं जो कि खुद ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इस तरह की बातों में। सो आई एम श्योर आप लोगों को भी इसका काफी इफेक्ट आता होगा व्हेन यू डूइंग योर जॉब, स्पेशली रिपोर्ट कार्ड पे। हाँ, तो रिपोर्ट कार्ड भी, वैसे भी आपकी ट्वीट्स के ऊपर भी, वैसे भी आप कोई भी बात करें, आप कहीं कुछ लिखें के ऊपर भी कमेंट्स आ जाते हैं। असल चीज ये है कि ये ट्रेंड साउथ एशिया के अंदर स्टार्ट किया था बीजेपी ने, मोदी गवर्नमेंट, मतलब मोदी के गवर्नमेंट में आने से पहले, मोदी भक्त जिनको कहते हैं। तो ये हाँ, ये साउथ एशिया के अंदर मैं कहूंगी कि जो एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग, फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी इस तरह होता है, पूरी प्रॉपर ट्रोल आर्मी, ट्रोल फार्म्स वगैरह, ये ट्रम्प की और वो सब भी जिस तरह था। तो ये इंडिया के अंदर से स्टार्ट हुआ, एंड आई थिंक कि ये सबसे पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो इस चीज को देखा और मेरे ख्याल में ट्रेंड स्टार्ट किया, वो शायद पीटीआई ही थी। क्योंकि पीटीआई के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स, यंगस्टर्स, दे वॉलंटियर्ड, उनकी एक वो पूरी वॉलंटियर फोर्स भी थी सोशल मीडिया पे। शायद उनको अच्छा भी नहीं लगता था कि उनके लीडर के बारे में कोई बुरी बात करे, जिसमें ठीक है, इट्स फाइन, आई एम टची अबाउट a lot of people, so I can understand। मतलब अगर कोई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे कोई बात करता है कोई नेगेटिव सी, तो मैं भी रिएक्ट कर जाती हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड अगर उनके लिए इमरान खान साहब इतनी बड़ी चीज थे कि उनके ऊपर अटैक। बट चलो, अगर कोई एक जिस तरह होता है फॉलोअर हो ना प्रॉपर, वो अगर इस तरह की चीज करे तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट फिर ये पेड ट्रोल्स वाली चीज स्टार्ट हो गई, वो जो है वो मेरे ख्याल में बहुत एक मनफी चीज लेकर आया है एक सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन बात वही है कि वो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन गया ना, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उससे किस तरह ना बच सकते हैं, ना आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको क्या करेंगे। बस जवाब ना दो। मेरा तो इसमें सिंपल है कि इन लोगों के साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं। एक जमाना होता था मैं लोगों के साथ एंगेज करती थी, मैं ट्रोल्स के साथ भी एंगेज करती थी, not anymore। I really don't have the patience to do that anymore, seriously। We have so much going on in life, in any case I've taken on too many projects, I'm doing a lot of work, फिर घर भी है, जाहिर बात है, वो भी, फिर दोस्त बाहर, सब कुछ चल रहा है, साथ साथ चलता है। So really don't have the time to respond to them। नहीं, all power to you, that's excellent। I mean like especially not paying attention, वरना इसका कोई point नहीं है, like it takes you only down, इसका कोई फायदा नहीं, because उनकी job है, that's what they're there for to do, and they're not there to be rational with you, they're there to just provoke you, so there is really no point to do that। So Ramzan is tomorrow, Ramzan Mubarak to you, and आपका क्या सैरी का प्लान?
सहरी का ये है कि चिकन मैंने बना के कल रात रख दिया था, अभी मैं सुबह जो है वो अंडों का खागीना बनाऊंगी और डबल रोटी और अच्छा। चाय के साथ जो है ना, मैं जो चीज मिस करूंगी वो चाय है। मतलब मुझे है कि जाहिर बात है सुबह सुबह उठ जाते हैं, काम 10:30-11 से स्टार्ट हो जाता है, तो काम के साथ हम्म, चाय या कॉफी चाहिए होती है। अब वो नहीं समझ आ रही तो हम्म। उसका क्या करेंगे, और फिर मेरे ख्याल सो में भी एक नहीं दो सकते। रोजों में एक प्रॉब्लम होगी, फिर ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं सलमान, एक जमाना होता था कि जरा थोड़े से जब जरा यंग थे या जब जिस तरह नौकरी वोकरी नहीं करते थे, कि तब होता था कि रोजा हम्म, रखा ना, सुबह फजर पड़ी, हम्म, सहरी की, फजर पड़ी, उसके बाद सो गए, अच्छा फिर उठ के जोहर हम्म, पड़ी, फिर सो गए, फिर उठे अगली नमाज पढ़ी, हम्म। सो गए, फिर इफ्तारी पे उठे। मतलब मैं खैर, मुझे तो सोना वैसे ही बड़ा पसंद है, मैं तो मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं 23 घंटे सो चुकी हूँ आई इन कैन नॉट इन स्लीप। वन गो। तो मेरा तो प्रॉब्लम है ये, अब मैं नहीं नहीं सो, मैं तो अब रात के लिए सोता हूँ। हम्म, नहीं नहीं, मैं अब तो खैर सोती हूँ थोड़ी सी, मतलब 7-8 घंटे की तो चलो मैं एवरेज पूरी कर ही लेती हूँ, कई दफा नहीं होती, कभी होता है 2 घंटे सोए या 4 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। हम्म, बट आई मिस दोज डेज कि जब मैं पूरा रोजा सो के गुजार सकती थी, लेकिन अब नहीं। हम्म। हाँ, नहीं अब तो बड़ा मुश्किल है, खासतौर पर विद वर्क एंड सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव। इट्स आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू डू इट। तो अफ्तारी का क्या प्लान है? कचौरियां समोसे वगैरह बन रहे हैं या बाहर से लानी है, क्या करना नहीं नहीं सलमान, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। असल में मैं जिस तरह आपको पहले बताई थी कि मुझे मीठे का इतना शौक है, तो मैं प्री डायबिटिक हो गई और मेरे पूरे खानदान में डायबिटीज है। सो माय है? पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सबको, यू नेम इट, चचा फूफो, ये वो। हम्म, तो उसकी वजह हम्म। से मैंने जनवरी के अंदर मैंने स्टार्ट किया, आई एम ऑफ मीठा, आई एम ऑफ फ्राइड, डीप फ्राइड That's good. स्टफ, शामी That's वगैरह good. या इस तरह की चीज। तो हेल्दी ईटिंग मैं कर रही हूँ। तो रमजान में तो हम्म। बिल्कुल ही हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो आपकी बिल्कुल ना स्किन तबाह हो जाती है और आपका वेट तो जैसे तैसे ही रमजान रहता है। में और हम एंड उल्टा बिकॉज चलते माई, हैं, हम उल्टा चलते हैं रमजान में। नहीं नहीं, मेरे घर में फिर भी वी आर वेरी केयरफुल, बिकॉज माय हस्बैंड इज आल्सो अ हार्ट पेशेंट एट अ वेरी यंग एज, ही हैड अ बाईपास एट द एज ऑफ 35। सो इस वाह। वजह से वो बिलाल खुद भी जो है वो अपनी बड़ी डाइट फॉलो करता है, कभी कभार खाता है जंक, मतलब वंस इन अ वाइल ऑब्वियसली ही गोज ऑफ द रेल्स, बट अदर देन दैट हम लोगों की कोशिश होती है कि कम घी और अच्छा खाना। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स तो दैट्स द वे इफ्तारी टू में गो, जो लेकिन मैंने बना दिया या जो बिलाल ने बना दिया। अच्छा, चलो दैट्स गुड। हाँ, हमारे तो ऑब्वियस यूजुअली इट्स ऑपोजिट, लाइक अगर आप गल्फ कंट्रीज में भी चले जाएं या पाकिस्तान में आ जाएं, तो फूड कंजम्पशन एक्चुअली इंक्रीजेस इन रमजान रादर देन डिक्रीजिंग, सो इट्स लाइक अ very different zone that we are in. Instead of like losing weight, we end up gaining weight in Ramzan. मेरे साथ भी बहुत होता था, बड़े रमजान में मैंने वेट गेन किया, समोसे खा खा के, मेरे तो वैसे ही एक इतनी कुछ वीकनेस है समोसे, तो समोसे और कचौरियां खा खा कर, पकौड़े खा खा के, तो ऐसे फूल हाँ, जाना। लेकिन ये है कि इस रमजान जो है खुद बनाने पड़ेंगे ना, तो exactly. पकौड़े नहीं रोज बंदा बना सकता, और ना इस तरह की चीजें। नहीं बना सकता, ना खानी चाहिए। मेरी भी एक ट्रेडिशन है, लक्ष्मी चौक पे एक स्वीट कॉर्नर है, उसकी कचौरी बहुत जबरदस्त है। मैं हर रमजान, मेरी एक ट्रेडिशन है कि मैं वहां से जाके लाता हूँ, लाइक उसकी कचौरी इज द बेस्ट कचौरी इन लाहौर, लक्ष्मी चौक में। कभी मौका ओ मिलेगा तो चले, आई टेक नेक्स्ट यू। नेक्स्ट ईयर इट्स खाएंगे, राइट। नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट ये बिल्कुल चौक में, लेकिन उसकी कचौरी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कचौरीज आई एवर हैड। तो वो भी मैं अभी सोच रहा था कि इस साल वो भी मिस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इस शॉप इज गोना बी ओपन एनी मोर। तो इस साल मेरे हाँ बिकॉज ख्याल में अभी तो खैर रमजान जो वैसे है। भी खुल भी जाए, नहीं खुल भी जाए हाँ। सलमान, तो मेरे ख्याल में हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी वही बात जो हम कहते भी हैं वही करनी भी चाहिए, हम्म, कि हमें नहीं बाहर हम्म, जाना चाहिए। डॉक्टर्स जिस हाँ, तरह से वार्न कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड स्टे होम, कम से कम हम्म, जितना बहुत जरूरी काम हो तो निकले, बट अदरवाइज हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। बस पूरी दुनिया के हम्म, अंदर एक ये चीज है, इट्स गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। सो हमें क्या जरूरत है हम्म। अपनी भी जिंदगी रिस्क में डालने की और दूसरों की भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मैमल फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। अब अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को हम ये यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, तो कोई मैसेज दें फॉर अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट दिस कोरोना क्वारंटीन, एंड स्पेशली यू नो हाउ टू, जो आपने अभी बात की है कि हाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर्स एंड नॉट एनीवन एल्स। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो देखें, आइसोलेशन ने मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ट्रेन भी कर दिया। अब तो तकरीबन महीना होने ही वाला है आइसोलेशन में। तो हम्म, आप लोग, एक एक तो आइसोलेशन ने जो चीज मुझे सिखाई है वो है पेशेंस। आई थिंक दैट्स हम्म, समथिंग। दूसरा, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअली इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी, इवन दिस जस्ट इन अ मंथ।
मतलब आई थिंक इट हैज ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड इन अ वे। तो वो वाली एक भी एक चीज है। फिर रमजान का महीना आ रहा है, तो आप लोग आई जस्ट फील कि हमें, मेरे ख्याल में जो नेगेटिव चीजें है ना, खासतौर पे एक रमजान के महीने के अंदर, हमें वो बिल्कुल कट आउट कर देनी चाहिए अपनी जिंदगी से। दूसरों का अगर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है दूसरों के बारे में या कोई ऐसी चीज, उसको भी खत्म करें, उसको भी कम कर दें। और दूसरा ये कि अपने नफ्स से असल जंग तो है ना, दूसरों के साथ तो जंग नहीं है रमजान में। रमजान इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ कि आप मेंटल हेल्थ और ये बाकी जो सारी चीजें हैं इसके बारे में भी सोचें, मेडिटेशन करें। मेरे ख्याल में मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, सो वो करनी चाहिए। और मैं तो सबको यही कहूंगी कि देखो यार, हंसते मुस्कुराते रहो। लोगों के ऊपर जो है, मतलब लोगों को बुरा भला कहने से तुम लोगों को क्या मिल जाना है, या उसका तो कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे बुरा भला कहने से। अपने आप को ये क्या दिल जलाना। तो सही हर वक्त बात बस है, सही हंसते कुछ तो मुस्कुराते डॉक्टर, रहे एंड स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और यही मैसेज है, आई मीन लाइक जो आपने बिल्कुल इस तरह बाकी रमजान हो या दूसरा हो, कि लाइक वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स जिससे लोगों का फायदा हो। क्योंकि इस कम से कम इस कोरोना से जो मुझे एक लेसन मिला वो यही कि वी आर वन स्नीज अवे फ्रॉम बीइंग टोटली गॉन फ्रॉम दिस अर्थ। और कोई टाइम, वी डोंट हैव एनी टाइम एट ऑल। हमें कोई पता नहीं कि सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं। तो हमें, we have to like spend our time helping others, doing projects which can help others and basically bring a very positive change. On that note, अभी मैं आपको बता दूंगा कि 4-5 दिनों बाद या अगले हफ्ते हमारा जो पब्लिक टॉयलेट्स का प्रोजेक्ट है, we are launching it. So I'll invite you to see that. Oh, very nice. So that will be especially for women. That was a big issue. So now they'll have access to बिल्कुल। clean public toilets in Chhattisgarh all across Pakistan. So I'll invite you to see that as well. Thank you, Salman. See you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Thank you very much, viewers, for joining us for an amazing session with super cool Mamal. And I'm sure you heard her message. और अपने आप को safe रखें, अपने आप को quarantine में रखें, isolation में रखें, ताकि आप safe रह सकें. Tomorrow is Ramzan's first Ramzan, and Ramzan Mubarak to all of you. Listen to the doctors, don't listen to anyone else, and follow the advice of doctors. And please don't fall for any of the propaganda that's out there trying to tell you otherwise. Tomorrow we have a session with a very amazing, talented young guy from Karachi. He's very famous throughout his career, Dino. He's a very, very famous RJ, and even some amazing voice and some amazing music that he has created. So we'll be live with Dino at 9:30 tomorrow night. Ramzan Mubarak, everyone stay safe and stay healthy. Inshallah, let's see you tomorrow.